question is 10th question. At 490 degrees Celsius, the equilibrium constant for the synthesis of HI is 50. The value of K for the dissociation of HI will be. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ HI इज 50. तो HI का एक मोल कैसे बनेगा? H2 plus I2, that is half H2 plus half I2. ये है रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ HI और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज 50, that is given and it is equal to 50. Now is asking the value of K for the dissociation of HI will be. That means value for this equilibrium HI getting dissociated into half H2 plus half I2. इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है let it be K2, उसकी वैल्यू निकालनी है. तो आपने इस इक्वेशन को क्या किया? रिवर्स किया. तो दैट मीन्स K2 क्या होगा? K2 विल बी इक्वल टू 1 बाय K1, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 50, विच इज इक्वल टू 0.02. So answer will be 0.02. So C is the correct option, 0.02. Next question, 11th question. And 11th question is for the reaction A2 gas plus thrice B2 gas in equilibrium with twice C2 gas, the partial pressures of A2, B2 at equilibrium are 0.80 atmosphere and 0.40 atmosphere respectively. A2 और B2 के partial pressures given है. The pressure of the system is also given, that is 2.80 atmosphere. The equilibrium constant Kp will be. तो Kp निकालने के लिए सबसे पहले आपको हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर चाहिए. A2 और B2 का गिवन है. व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ C2? टोटल में से A2 और B2 के पार्शियल प्रेशर्स माइनस करवा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए. दैट विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 बिकॉज P टोटल, the total pressure है that will be equal to partial pressure of A2 plus partial pressure of B2 plus partial pressure of C2. So total pressure is 2.80. So partial pressure of A2 will be equal, is given 0.80. Partial pressure of B2 is also given 0.40, and you have to calculate partial pressure of C2. So partial pressure of C2 will be equal to 2.80 minus 0.80 minus 0.40. So it will be, so it has to be 1.6. This will be 1.6. Now come to the equilibrium constant K. तो K कैसे निकलेगा? K will be equal to, जो इक्वेशन है उसको देखिए, जो प्रोडक्ट्स हैं क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट्स C2 जो है दैट इज अ प्रोडक्ट रेज टू पावर 2 ऑल्सो. So partial pressure of C2 raised to power 2 divided by partial pressure of A2 into partial pressure of B2 raised to power 3. अब वैल्यूज डाल दीजिए. पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 is 1.6 raised to power 2 divided by partial pressure of A2 is 0.80 into partial pressure of B2 is 0.40 raised to power 3, and if we solve this, the answer will be equal to 50. एक बार फिर से देखिए, तीन गैसेस हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, एक A2, एक B2, एक C2. तीनों के जो पार्शियल प्रेशर्स होंगे उनका जो सम टोटल होगा, that will be the total pressure. This is Dalton's law, that sum total of all the partial pressures of non-reacting gases will be the total pressure of that mixture. So partial pressure of A2 plus partial pressure of B2 plus partial pressure of C2 will be P total. Total pressure 2.80 is given. A2 का pressure is given, B2 का pressure is given, C2 का partial pressure निकल जाएगा इस equation से, and that is equal to 1.6. Now come to equilibrium constant Kp. Kp क्या होगा? C2 का पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर 2
डिवाइडेड बाय A2 का पार्शियल प्रेशर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 रेज टू पावर 3। अब वैल्यूज डाल दें, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 इज 1.6 रेज टू पावर 2, partial pressure of A2 is 0.80, partial pressure of B2 is 0.4 raised to power 3 also, so this will be equal to 50, 50. A is the correct option 11th question की. Next question, 12th question. 1 mole of N2 and 3 moles of H2 are mixed in a liter flask. If 50% N2 is converted into ammonia by the reaction N2 gas plus thrice H2 gas giving you twice NH3 gas, then the total number of moles of the gas at the equilibrium is. Total number of moles पूछ रहा है ये. Question number 12th. So it is N2 gas plus thrice H2 gas twice NH3 gas. So 1 mole of N2 and 3 moles of H2 are mixed. So it is 1 and this is 3 moles, or initially it will be 0. Are mixed in a liter flask. If 50% N2 is converted into ammonia by the reaction, 50% N2 निकल जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा ये? At equilibrium 50% निकाल दीजिए इसमें से, that will be 0.5 निकाल दीजिए, तो 1 minus 0.5 is equal to 0.5. अगर ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2 के कितने मोल्स रिएक्ट करने चाहिए? 3 मोल्स. अगर ये 0.5 रिएक्ट करता है तो इसके कितने रिएक्ट करने चाहिए? 0.5 into 3 that is equal to 1.5. तो इसमें से 1.5 निकाल दीजिए तो कितना रह जाएगा ये? 3 में से 1.5 निकल गए, we are left only with 1.5. अब come to NH3. अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो NH3 के 2 मोल्स बनने चाहिए, लेकिन इसके कितने मोल्स रिएक्ट किए? 0.5, तो इसके कितने बनने चाहिए? 1 मोल. डबल ऑफ 0.5 इज 1 मोल. सो स्टोइकियोमेट्री को माइंड में रखते हुए एक बार फिर से देखिए आप, ये 1 मोल था, ये 3 मोल्स थे. फिर क्वेश्चन में बोला इसने कि 50% N2 रिएक्ट कर गया, तो 1 का 50% मींस 0.5 मोल्स रिएक्ट कर गए. 1 में से 0.5 निकालिए, 1 माइनस 0.5, 0.5 रह गए इसके. इसके अगर 0.5 रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने रिएक्ट करने चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ 0.5 दैट इज 1.5. सो 3 में से 1.5 निकाल दीजिए, क्या रह गया? 1.5. अब देखिए अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं. इसका कितना रिएक्ट किया? 0.5, तो इसके कितने बनेंगे? 2 into 0.5 दैट इज 1 मोल. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, कितने आ जाएंगे टोटल? 1 प्लस 1.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 3 मोल्स विल बी द आंसर. सो 12th का बी दैट इज 3 मोल्स इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आइए 13th क्वेश्चन पे. 13th क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम सिस्टम ट्वाइस HX गैस in equilibrium with H2 gas plus X2 gas, the equilibrium constant is 1.0 into 10 raised to power minus 5. Equilibrium constant given है. What is the concentration of HX if the equilibrium concentrations of H2 and X2 are 1.2 into 10 raised to power minus 3 moles and 1.2 into 10 raised to power minus 4 moles मोलर रिस्पेक्टिवली. तो कंसंट्रेशन H2 और X2 की गिवन है, HX की पूछी है, और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन इज आल्सो गिवन. थर्टीन्थ क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कौन सा है? ट्वाइस HX गैस इन इक्विलिब्रियम विद H2 गैस plus X2 gas. This is the equilibrium which is given. K is also given. पर इसके लिए equilibrium constant K लिखोगे कैसे आप? K will be equal to H2 की concentration into X2 की concentration divided by HX की concentration raised to power 2.
अब वैल्यूज डाल दीजिए, k की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, k की वैल्यू जो है दैट इज गिवन 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू H2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। X2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय HX रेज टू पावर 2। इस इक्वेशन से सबसे पहले HX स्क्वायर निकालिए, उसके बाद HX निकालिए अंडर रूट लेके, एंड इफ वी सॉल्व दिस, दिस विल बी इक्वल टू HX की कंसंट्रेशन जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -1 मोलर। So it will be 1.2 into 10 raised to power -1 molar, that is D is the correct option, 13th का D 1.2 into 10 raised to power -1 molar। 14th question, if Kp for the reaction A gas plus twice B gas in equilibrium with thrice C gas plus D gas is 0.05 atmosphere at 1000 Kelvin, its Kc in terms of R will be। Kp given है और Kc के लिए is asking for। तो equilibrium is A gas plus twice B gas in equilibrium with thrice C gas plus D gas, this is the equilibrium which is given। Kp की वैल्यू गिवन है और रिलेशन आपको पता है Kp is equal to KCRT raised to power delta Ng, this is the relation। so Kc क्या हो जाएगा, Kc will be Kp divided by RT raised to power delta Ng। so Kp की वैल्यू 0.05, R T टेम्परेचर कितना गिवन है 1000 केल्विन रेज टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स। प्रोडक्ट थे कितने हैं 3 + 1 4, 4 - 3 that is equal to 1, so delta Ng will be 1, so Kc will be 0.05 divided by R into 1000, that is 10 raised to power 3 ऊपर जाएगा 10 raised to -3 हो जाएगा, so it will be 5 into 10 raised to -2 ऑलरेडी है, तो 5 into 10 raised to power -5 upon R, this will be the correct answer and this is D option। so 14th का D, that is 5 into 10 raised to power -5 upon R is the correct option। next question 15th question पे आइए। अब इसके बाद what will be the equilibrium constant at 717 Kelvin for the reaction HI gas in equilibrium with half H2 gas plus half I2 gas if its value for the reaction H2 gas plus I2 gas in equilibrium with twice HI gas at 717 Kelvin is 64। फिफ्टींथ क्वेश्चन, तो वैल्यू देखिए किसके लिए दी हुई है, इस इक्विलिब्रियम के लिए H2 plus I2 in equilibrium with twice HI, let it be K1 is equal to this is 64। और पूछी किसके लिए, he is asking the equilibrium constant for this equation HI in equilibrium with half H2 plus half I2, let it be K2। K2 निकालना है, K1 गिवन है। इस इक्वेशन को क्या क्या करना पड़ेगा so that you come to this equation, एक तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करें तो that will be twice HI gas in equilibrium with H2 gas plus I2 gas। रिवर्स किया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/K1 होगा, that is 1/64 होगा।
अब इस इक्वेशन को क्या करें सो दैट आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाए, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करें, हाफ इंटू 2 दैट इज एच आई, हाफ H2 प्लस हाफ I2। तो आपने इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो K2 क्या होगा, K2 विल बी इक्वल टू 1 by K1 रेज टू पावर हाफ, दैट मीन्स 1 by 64 raised to power half, that is equal to 1 by 8. 1 by 8 will be the correct option. So 15th का D is the correct option. देखिए ये इक्वेशन गिवन थी H2 plus I2 giving you twice HI, इसके लिए K1 गिवन था 64 और आपने इस इक्वेशन तक पहुंचना है तो सबसे पहला काम इसको आपने रिवर्स किया, उल्टा किया इक्वेशन को, that means twice HI in equilibrium with H2 plus I2, उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 by K1 दैट इज इक्वल टू 1 by 64। अब इसको इक्वेशन को क्या करें सो दैट यहां पे पहुंच जाए, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट मींस K2 विल बी इक्वल टू 1 by K1, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1 by K1, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे रेज टू पावर करवाया तो रेज टू पावर हाफ, दैट मींस 1 by 64 रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू 1 by 8. So 15th का D is the correct option, 1 by 8. Next question, 16th question. Starting with 1 mole of O2 and 2 moles of SO2, the equilibrium for the formation of SO3 was established at a certain temperature. If V is the volume of the vessel and 2x is the number of moles of SO3 present, the equilibrium constant will be. तो 16th क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2, तो पहले तो आप इक्वेशन लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए आपने कंसीडर करना है, ट्वाइस SO2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस SO3 गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2, दिस इज 1, and 2 moles of SO2, these are 2 starting में, और SO3 कितने रहे होंगे, 0। Now come to the next part, the equilibrium for the formation of SO3 was established at a certain temperature. If V is the volume of the vessel, volume is also given, 2x is the number of moles of SO3 present. SO3 के equilibrium में कितने moles present हैं, 2x. So I am talking about at equilibrium, ये वाला second part जो है, इसके 2x हैं अगर, तो यहां से कितने निकले होंगे, इसमें से अगर 1 मोल निकलता है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं, इसके 2x बने हैं तो यहां से x निकला होगा, तो इट विल बी 1 माइनस x। इसके 2x बने हैं तो यहां से कितने निकले होंगे, रेशियो देखिए आप 2:2, अगर यहां से 2 निकलते हैं तो इसके 2 बनेंगे, अगर इसके 2x बन रहे हैं तो यहां से कितना निकला होगा, 2x निकले होंगे, तो 2 माइनस 2x। इसके देखिए 2x मोल्स बोले हैं एट इक्विलिब्रियम पे, अगर इसके 2x बने हैं, 2 बने हैं अगर, तो 1 यहां से निकला होगा, 2x बने हैं तो x यहां से निकला होगा, 1 माइनस x रह जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। इसके 2 मोल्स बने अगर तो यहां से 2 निकले होंगे, इसके 2x बने अगर तो यहां से 2x निकले होंगे, तो 2 में से निकाल दीजिए 2 माइनस 2x, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने होंगे, 2 माइनस 2x, इसके 1 माइनस x, इसके 2x, और कंसंट्रेशन कंसीडर करनी होती की में, तो वॉल्यूम गिवन है V, so divided by V. Now come to the equilibrium constant K, K क्या होगा, SO3 की कंसंट्रेशन raised to power 2 because stoichiometric coefficient is 2 divided by SO2 की कंसंट्रेशन raised to power 2 into O2 की कंसंट्रेशन, and this will be equal to 2x divided by V raised to power 2 divided by 2 minus 2x divided by V raised to power 2 into O2 की concentration is 1 minus x divided by V, and if we solve this, this will be equal to A option x square V
divided by 1 minus x raised to power 3. So this will be the correct option. x square v upon 1 minus x raised to power 3. अब मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको जल्दी करना है तो जस्ट कंसीडर द वॉल्यूम v. कौन सी ऑप्शन में देखिए वॉल्यूम, अब आप ये देखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे अगर आप बाकी मोल्स कंसीडर नहीं करना चाहते तो सबसे पहला अगर जल्दी से आपने ऑप्शन ट्राई करनी है तो क्या होना था, ये आप मोल्स रहने दीजिए, वॉल्यूम्स कंसीडर कीजिए. तो यहाँ पे क्या आना था, ये दिस वुड हैव बीन, वॉल्यूम नीचे आती है मोलर कंसंट्रेशन में, तो जितने भी मोल्स हैं उसको रहने दीजिए. वॉल्यूम क्या आएगी 1 बाय वी स्क्वेयर, इट विल बी 1 बाय वी स्क्वेयर, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा 1 बाय वी ओनली. दिस विल कैंसल आउट, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय वी विल बी इक्वल टू वी. तो न्यूमिनेटर में v किस ऑप्शन में आ रहा है ये आप देख सकते हो. तो ऐसी एक ही ऑप्शन है जिसमें न्यूमिनेटर में सिंगल v आ रहा है, एंड दैट इज द ए ऑप्शन. अगर दो ऑप्शंस हो ऐसी जिसमें न्यूमिनेटर में सिंगल v आ रहा होता तब आपको पूरा सॉल्व करना है. अदरवाइज जस्ट कंसीडर द वॉल्यूम्स कि कितनी वॉल्यूम्स आएंगी. अगर v इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल तो कितनी वॉल्यूम्स आएंगी और कहां पे आएंगी, न्यूमिनेटर में आएगी या डिनोमिनेटर में आएगी. सो ये पूरा कर किए बिना ही दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड कि एक वॉल्यूम आ रही है और वो भी न्यूमिनेटर में आ रही है. तो इट हैज टू बी ए ऑप्शन. 16th का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. एक्स स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेज्ड टू पावर 3. 17th क्वेश्चन, the equilibrium constant Kp for the reaction A in equilibrium with twice B is related to degree of dissociation alpha of A and the total pressure P as. A gases हैं ये और this is 2B. If this is 1 mole in the beginning, ये कितने होंगे 0. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा अगर ये रह जाएगा ये कितना बनेगा 2 अल्फा. टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, एनटी निकाल लीजिए. एनटी विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा. टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. उसके बाद जो केपी होता है, केपी जो है एक सिंपल फॉर्म में आपको बताता हूं कि केपी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखना है आपने. तो केपी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रेज टू पावर 2. कितने मोल्स हैं 2 अल्फा रेज टू पावर 2. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरूर कंसीडर करना है. पहले आप मोल्स के हिसाब से लिख दीजिए कि 2 अल्फा रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 1 इनटू द टोटल प्रेशर जो गिवन है यहाँ पे. टोटल प्रेशर इज P डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम. कितने आ रहे हैं 1 प्लस अल्फा रेज टू पावर डेल्टा एन जी. यहाँ पे डेल्टा एन जी था रेज टू पावर, तो डेल्टा एन जी क्या होगा इसमें 2 मोल्स गैसियस मोल्स प्रोडक्ट्स में माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1. डेल्टा एन जी विल बी 1. सो एक फॉर्मूला ये भी है कि केपी कैसे लिखा जाता है. एक तो मैंने बताया था आपको पार्शियल प्रेशर्स निकाल लीजिए सारों के. पार्शियल प्रेशर कैसे निकलते हैं, जितने मोल्स इसके हैं. बी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलना था, बी के जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू द टोटल प्रेशर, दैट वुड हैव बीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. इसके मोल्स 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 प्लस अल्फा इनटू द टोटल प्रेशर. अदरवाइज इजियर मेथड जो है केपी लिखने का, दैट इज मोल्स के हिसाब से लिख लीजिए. कोई भी टोटल प्रेशर वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से पार्शियल प्रेशर निकालने की कोई जरूरत नहीं है. केपी विल बी number of moles of B raised to power 2 divided by number of moles of A into total pressure at the equilibrium divided by total number of moles raised to power delta Ng. तो डेल्टा Ng यहाँ पे 1 होगा, तो this will be the Kp, value of Kp. Kp will be equal to 4 alpha square into P और 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा क्या होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Kp. 4 अल्फा स्क्वेयर इंटू P डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर. A is the correct option for 17th question. Next question is 18th question. Based upon the following hypothetical equilibrium
at 273 Kelvin, XCl2 dot 6H2O solid in equilibrium with XCl2 dot twice H2O plus 4H2O gas is इसके लिए Kp given है is equal to 8.1 into 10 raised to power minus 11 atmosphere raised to power 4. Next given है Y2HPO4 dot 12 H2O solid in equilibrium with Y2HPO4 dot 7 H2O plus 5 H2O gas. उसके लिए Kp given है equal to 3.2 into 10 raised to power minus 9 atmosphere raised to power 5. Next is Z2 SO4 dot 10 H2O solid in equilibrium with Z2 SO4 solid plus 10 H2O gas in equilibrium. उसका Kp given है, Kp is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 30 atmosphere raised to power 10. Which is the most effective dehydrating agent at 273 Kelvin? Aqueous tension at 273 Kelvin is equal to 6.0 into 10 raised to power minus 3 atmosphere. तो ऊपर जितने भी रिएक्शंस हैं उनके जो रिवर्स रिएक्शंस हैं अगर आप उनको कंसीडर करोगे तब आप डिहाइड्रेटिंग पावर कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन देखिए ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला रिवर्स रिएक्शन देखिए XCl2 डॉट ट्वाइस H2O प्लस 4H2O. दैट मीन्स ये वाली जो चीज है XCl2 डॉट ट्वाइस H2O उसने कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने साथ जोड़े हैं? 4 H2O. सेकंड में 5 H2O, थर्ड में 10 H2O. लेकिन अकेला यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ये पता नहीं चल जाता कि किसकी डिहाइड्रेटिंग पावर, किसका पावर को वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा है. आपने जो रिएक्शंस हैं डिहाइड्रेटिंग वाले रिएक्शन मतलब रिवर्स वाले रिएक्शन हर एक के, उनके लिए K की वैल्यूज कंसीडर करनी है. सारों के लिए K की जो रिवर्स वैल्यूज हैं वो कंसीडर कीजिए. सबसे ऊपर वाली वैल्यू आएगी दैट विल बी 8.1 into 10 raised to minus 11 का रिवर्स. दैट मीन्स अराउंड 10 raised to power 11 आ जाएगी. सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर डिहाइड्रेटिंग पावर देखनी है तो इसका रिवर्स देखना पड़ेगा. तो रिवर्स के लिए 1 डिवाइडेड बाय 3.2 into 10 raised to power minus 9 वैल्यू होगी. दैट मीन्स अराउंड 10 raised to power 9 होगी वैल्यू. थर्ड के लिए 1 डिवाइडेड बाय 10 raised to power minus 30 दैट मीन्स 10 raised to power 30 आएगी वैल्यू रिवर्स रिएक्शन के लिए. और इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ K. और इसमें जो डिहाइड्रेटिंग पावर होगी Z2SO4 की दैट विल बी मैक्सिमम. देखिए जो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं एक बार फिर से देखिए 18th क्वेश्चन कि डिहाइड्रेटिंग पावर पूछी है. डिहाइड्रेशन मींस वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कौन से वाले मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा है. मैं थर्ड पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं. इसने दिया हुआ ये वाला Z2SO4 डॉट 10 H2O solid in equilibrium with Z2SO4 solid plus 10 H2O. तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट विल बी Z2SO4. और इसकी डिहाइड्रेटिंग पावर किस हिसाब से देखोगे आप? इस रिएक्शन के लिए जो K है दैट इज गिवन 1.0 into 10 raised to power minus 30. डिहाइड्रेटिंग पावर देखने का मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन यू हैव टू कंसीडर, क्योंकि पानी कब एब्जॉर्ब हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रहा है. एंड दैट इज Z2SO4 प्लस 10 H2O गिविंग यू Z2SO4 डॉट 10 H2O. और इस रिवर्स कर दिया जाएगा रिएक्शन को तो उसके लिए K क्या आएगा? K विल बी इसका उल्टा दैट इज 10 raised to power 30. ऐसे ही सारे रिएक्शंस के लिए आपने रिवर्स रिएक्शंस के लिए K की वैल्यूज देखनी है. और हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए आ रही है? दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो Z2SO4 विल बी द मोस्ट इफेक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज इसमें K की वैल्यू हाईएस्ट आ रही है. K की वैल्यू हाईएस्ट आने का मतलब है कि रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट साइड में जाएगा तीनों रिएक्शंस को अगर कंपेयर किया जाए. और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट साइड में जाने का मतलब है कि इस केस में Z2SO4 सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. पानी को वो बहुत इफेक्टिवली बहुत एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करेगा. सो इट हैज टू बी 18th का सी ऑप्शन Z2SO4. 19th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन
is 19th question, and this is that in a reaction A gas plus twice B gas in equilibrium with twice C gas, 2.0 mole of A, 3.0 mole of B and 2.0 mole of C are placed in a 2-liter closed flask. If the equilibrium concentration of C is 0.5 moles per liter, the equilibrium constant for the dissociation of C is. तो इसने पूछा है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ सी. दैट मीन्स डिसोसिएशन ऑफ सी के लिए आपको रिएक्शन उल्टा लिखना पड़ेगा, जैसा गिवन है उससे उल्टा लिखना पड़ेगा. डिसोसिएशन ऑफ सी के लिए उल्टा लिखिए रिएक्शन. ट्वाइस सी क्या क्या देगा, ए प्लस ट्वाइस बी गैस. कितने कितने मोल्स हैं हर एक के, पहले देखिए 2 मोल्स ऑफ ए, so this is 2 moles of A, 3 moles of B are placed in a 2-liter flask, are placed in a 2-liter flask. और C के कितने मोल्स दिए हैं, C के भी 2 मोल्स हैं. These are the moles. कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. कितना वाली वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम है, कौन सा वाला फ्लास्क है, 2 लीटर फ्लास्क. सो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5. तो ये तो मोलर कंसंट्रेशन निकल गई. उसके बाद देखिए इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज 0.5 मोल्स पर लीटर, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज 0.5 मोल्स पर लीटर. तो यहां पे ये कंसिडर कीजिए कि इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए इसमें से 2x निकल जाते हैं, यहां से कंसंट्रेशन जो डिक्रीज करती है दैट इज डिक्रीजिंग बाय 2x. तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन विल बी 1 माइनस 2x. अगर यहां से 2x निकाले इसके कितने बनेंगे, x, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस x. अगर यहां से 2x निकाल रहे हो तो इसके कितने बनेंगे, 2x, तो दिस विल बी 1.5 plus 2x, but these are not the number of moles I am considering. I am considering the molar concentration. अगर यहाँ से 2x अमाउंट से मोलर कंसंट्रेशन कम हुई है तो इसमें x अमाउंट से मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टोइकोमेट्री वही रहेगी, जैसे मोल्स निकालते हैं वैसे मोलर कंसंट्रेशन में स्टोइकोमेट्री रहेगी. इसमें से 2x निकले तो इसके x बनेंगे, तो 1 प्लस x. इसमें से 2x निकले तो इसकी कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होगी बाय 2x अमाउंट. सो दिस विल बी 1.5 प्लस 2x. सो ये कंसंट्रेशंस आ रही हैं एट द इक्विलिब्रियम. पर इसने एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज 0.5. सो C की ये वाली वैल्यू जो है 1 माइनस 2x, दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 0.5. सो 2x will be equal to 1 minus 0.5, that is 0.5. So x will be equal to 0.25. x की वैल्यू निकल गई. अब पूछा है इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ C इज, x की वैल्यू निकल गई. तो आपने ये करना है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज ये वाली निकाल लेनी है, यहाँ पे x डाल के 0.25 डाल के ये वैल्यू निकाल लेनी है, 0.25 डाल के ये वैल्यू निकाल लेनी है, 0.25 डाल के यहाँ पे B की मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेनी है. और K क्या आएगा, K विल बी इक्वल टू, अगर सारी वैल्यूज निकाल दें, A की मोलर कंसंट्रेशन, B की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय C की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2. और जो वैल्यूज आ रही हैं, A की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1.25, B की वैल्यू 0.25 डालें तो दिस विल बी 2 into 0.25 0.5, 1.5 प्लस 0.5 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C की जो आएगी दैट विल बी 0.5 raised to power 2. This will be the value of K, value of Kc, and if we solve this, this will be equal to 20. This will be equal to 20. So 19th का B 20 is the correct option. एक बार फिर से देखिए 19th क्वेश्चन में A plus 2B is in equilibrium with 2C, लेकिन इसने पूछा ये है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C गिवन है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ सी मांग रहा है, दैट मींस उल्टा रिएक्शन करना पड़ेगा आपको, ट्वाइस सी इन इक्विलिब्रियम विद ए प्लस 2b। कितने कितने मोल्स गिवन है, इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स। कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, दैट इज 2 by 2 1 1 1.5। अब इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन 2x अमाउंट से कम हुई, तो दिस विल बी 1 minus 2x। इसकी 2x अमाउंट से कम हुई तो इसके कितने बनेंगे, मोलर कंसंट्रेशन कितने से इंक्रीज होगी, x अमाउंट से। इसकी 2x अमाउंट से कम हुई तो इसकी कितने से इंक्रीज होगी, 2x अमाउंट से। तो दिस विल बी 1 plus x, दिस विल बी 1.5 plus 2x, दिस विल बी 1 minus 2x, और x ये 1 minus 2x, c की जो मोलर कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम दैट इज गिवन 0.5, यहां से x की वैल्यू निकाल ली 0.25। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी A कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय C की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। तो यहां पे x की वैल्यूज डाल के मोलर कंसंट्रेशन निकाल ली एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो वैल्यूज अगर यहां पे डालें दिस विल बी इक्वल टू 20। सो 19th का B इज द करेक्ट ऑप्शन 20। Next question is 20th question. In the equilibrium reaction, N2 gas plus thrice H2 gas in equilibrium with the twice NH3 gas plus 22 kilocalories, the production of NH3 can be increased by. So reaction is N2 gas plus thrice H2 gas in equilibrium with twice NH3 gas plus 22 kilocalories, that means exothermic reaction है, इतनी heat evolve हो रही है, the production of NH3 can be increased by first option is increasing the temperature, और ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो पहले आप ये लिख लीजिए कि दिस इज टूवर्ड्स राइट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, और इस साइड को इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाएं इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का तो इक्विलिब्रियम उस तरह से उस साइड को शिफ्ट होगा सो एज टू अंडू द इफेक्ट व्हिच हैज कॉज्ड इट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हो अगर तो इक्विलिब्रियम उस साइड को शिफ्ट होगा जिस साइड हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट मींस किस साइड को शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, जहां को हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो इट कैन नॉट बी ए ऑप्शन, क्योंकि इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे NH3 की डिसोसिएशन होगी। हमने तो यहां पे प्रोडक्शन ऑफ NH3 इंक्रीज करवानी है। सो ए कैन नॉट बी द ऑप्शन। बी ऑप्शन इज इंक्रीजिंग द प्रेशर। आप नंबर ऑफ गैसियस मोल्स देखिए, आप इस साइड 1 और 3 4 और उस साइड 2। अगर प्रेशर इंक्रीज करवाएं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कराओगे तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा, बिकॉज राइट साइड में लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं। सो 20th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग द प्रेशर। Next question, 21st question. The solubility S of a solute in water varies with temperature as given by S is equal to A e raised to power minus H delta H upon RT. Delta H being the enthalpy of solution. For a given solute, variation of log of S with temperature is shown in the figure. The solute is expected to be. The solute is expected to be. So this is 21st question. तो देखिए जो solubility की वैल्यू दी हुई है that is equal to A e raised to power minus delta H upon RT. और जो ग्राफ बना हुआ है वो देखिए किसमें बना हुआ, log of S versus 1 upon T. So that means आपको इसमें log लेना है दोनों साइड। log of S will be equal to log of A
minus delta H upon RT. Now if we compare this equation with y is equal to mx plus c, then the graph between log of s versus 1 upon t will be a straight line graph with negative slope, जैसा कि दिया हुआ उसने, और slope will be negative, और स्लोप है क्या देखिए यहां पे कंपेयर करें अगर इसको, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, दिस इज द स्लोप, और ये नेगेटिव हो अगर, इफ दिस इज नेगेटिव देन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शुड बी, क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव रखने के लिए डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स जो सॉल्युबिलिटी है जिसके बारे में बात हो रही है, दैट सॉल्युबिलिटी जो है दैट शुड बी एंडोथर्मिक। जब आप डिसॉल्व करोगे उस पर्टिकुलर सॉल्ट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसको डिसॉल्व कर रहे हैं दैट शुड बी एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये ऐसे सॉल्ट के लिए है जिसमें आप सॉल्युबिलिटी को अगर स्टडी करना है आपने, तो उस सॉल्ट को, पर्टिकुलर सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, दैट मींस एंडोथर्मिक होना चाहिए, हीट शुड बी एब्जॉर्ब्ड। तो कौन सा ऐसा सॉल्यूट है जिस केस में डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव? CaO, सेकेंड इज CuSO4, C is MgSO4, D is CuSO4.5H2O। सो फर्स्ट थ्री में तो जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे इसको, तो heat of hydration will be evolved. In that case, heat will be evolved. So process has to be exothermic. CaO में, CuSO4 में, MgSO4 में जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है दैट विल बी इवॉल्व। इट इज द डी ऑप्शन जिसमें कि CuSO4.5H2O, तो पहले इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे CuSO4.5H2O को, तो सबसे पहले इस सॉल्ट को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, दैट मींस डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव फॉर डी ऑप्शन। बाकी सबके लिए डेल्टा एच विल बी नेगेटिव straight away because heat will be evolved, heat of hydration will be evolved। लेकिन डी ऑप्शन में पहले इसको ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड। सो आंसर 21st का है दैट हैज टू बी डी ऑप्शन। एक बार फिर से देखिए कि कैसे मैंने बताया कि डेल्टा एच जो है दैट हैज टू बी पॉजिटिव। ये जो था सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कि S इज इक्वल टू AE रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। इसमें लॉग लिया दोनों साइड बिकॉज जो ग्राफ गिवन है दैट इज द ग्राफ इज बिटवीन लॉग ऑफ एस वर्सेस 1 अपॉन टी, तो लॉग लिया इसमें ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। नाउ वी कंपेयर्ड दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो स्लोप आया दैट केम आउट टू बी m, दैट इज माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, दिस इज द स्लोप। और जो ग्राफ बना है लॉग ऑफ एस वर्सेस 1 अपॉन टी में नेगेटिव स्लोप वाला लाइन है जो ऐसे को बनी हुई है, नेगेटिव इज द स्लोप, और ये है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, दैट मींस नेगेटिव स्लोप होने के लिए डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। तो दैट मींस ऐसे सॉल्ट की बात हो रही है, ऐसे सॉल्यूट की बात हो रही है जिसको पानी में अगर डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व करते हुए उसको ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी देनी पड़े, एंडोथर्मिक हो सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट थ्री जो है दे आर एक्सोथर्मिक, जब डिसॉल्व करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी इवॉल्व्ड, एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड। सो इट इज द फोर्थ ऑप्शन जिसमें CuSO4.5H2O को फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्व करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, डेल्टा एच हैज टू बी पॉजिटिव इन दैट केस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 21st का। 22nd क्वेश्चन, K1 and K2 are equilibrium constants for reactions 1 and 2. और first reaction जो given है that is N2 gas plus O2 gas in equilibrium with twice NO gas, इसके लिए equilibrium constant K1 given है, और second is NO gas in equilibrium with half N2 gas plus half O2 gas, इसके लिए जो equilibrium constant given है that is K2। then K1 और K2 के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है इसने ऑप्शंस में।
एंड दिस इज K2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस इक्वेशन से यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं आप? पहले तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब रिवर्स करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन ट्वाइस NO इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस O2 गैस। रिवर्स किया, दैट मींस इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी 1/K1। अब इस इक्वेशन से यहां तक कैसे पहुंच सकते हो? आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद हाफ। तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो इस इक्वेशन को, देन यू आर कमिंग अप टू दिस इक्वेशन। तो दैट मींस 1/K1 रेज टू पावर हाफ विल बी इक्वल टू K2, क्योंकि आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस इक्वेशन को, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे रेज टू पावर कराओगे आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/K1 रेज टू पावर हाफ विल बी इक्वल टू K2। सो दैट मींस K1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि ऑप्शंस में K1 है तो K1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स यू विल गेट 1/K1 इज इक्वल टू K2 स्क्वेयर, एंड K1 विल बी इक्वल टू 1/K2 square. This will be the correct option, that K1 will be equal to 1/K2 square, and this is the A option. So 22nd ka A is the correct answer. A is the correct option. Next question is 23rd question. Equilibrium constant for the reaction CH3COH liquid plus C2H5OH liquid in equilibrium with CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid is 4.0. Equilibrium constant is given. The mole fraction of the ester present at the equilibrium on mixing 120 gram of CH3COH and 92 gram of C2H5OH will be. See, he is asking for the mole fraction of the ester present at the equilibrium. तो सबसे पहला काम है रिएक्शन लिखिए और मोल्स निकालिए, कितने कितने मोल्स हैं, एसिटिक एसिड के कितने मोल्स होंगे और C2H5OH के कितने मोल्स होंगे बिगनिंग में। सो दिस इज 23rd क्वेश्चन। रिएक्शन है CH3COH प्लस C2H5OH in equilibrium with the ester, that is CH3 COO C2H5 plus H2O। CH3COH जो लिया हुआ है स्टार्टिंग में वो कितना गिवन है देखिए 120 ग्राम्स। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे CH3COH को? वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 120, मॉलिक्यूलर मास है 60, तो मोल्स कैसे निकलेंगे 120 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स थे बिगनिंग में इसके। और C2H5OH के कितने मोल्स थे? कितने ग्राम्स बोला है इसको? 92 ग्राम्स ऑफ C2H5OH, दैट मींस 92 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 46, तो 92 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू 2। सो दैट मींस इसके भी 2 मोल्स बिगनिंग में, इसके भी 2 मोल्स बिगनिंग में, इसके 0, इसके 0, दिस इज एट T इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। इसमें से मान लीजिए x मोल्स निकल गए, दिस विल बी 2 माइनस x, इसमें से x निकले तो इसमें से भी x जाएंगे, तो दिस विल बी 2 माइनस x। इनके अगर x निकले तो इनके कितने कितने बनेंगे x and x। Now he is asking for the mole fraction of ester present at the equilibrium, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकालने के लिए आप k की वैल्यू निकालिए, और जो कि गिवन है आपको k इज इक्वल टू CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन इंटू H2O की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन इंटू C2H5OH की कंसंट्रेशन। मोल्स ले रहे हैं यहां पे, हमें चाहिए वैसे मोलर कंसंट्रेशन, और जितनी भी वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय V, अगर आप डिवाइड बाय V भी कर दें थ्रू आउट तो V जो है वॉल्यूम जो है दैट विल कैंसल आउट। तो सिंपली यहां पे मोलर कंसंट्रेशन में आप क्या डाल सकते हो?
मोल्स की वैल्यूज डाल दीजिए और के इक्वल कर दीजिए इसको, जो के है दैट इज 4 और दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक इक्वेशन बनेगी एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x और x अगर कैलकुलेट करें यहां से दैट इज इक्वल टू 4/3। 4/3 is the value of x। आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस CH3COO C2H5। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है? जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स दैट विल बी इक्वल टू 4। जो NT है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4। So mole fraction of this CH3COO C2H5 will be equal to x divided by 4. That is equal to 4/3 divided by 4 and that will be equal to 1/3. So mole fraction is equal to 1/3 and 1/3 means 0.333 and this is C option. So 23rd का C is the करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के वैल्यू दी हुई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की और मोल फ्रैक्शन ऑफ द एस्टर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम पूछा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए एस्टर की प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम। लेकिन कितना कितना मिक्स किया? CH3COH 120 ग्राम्स और ये 92 ग्राम्स। तो पहला एम आपका होना चाहिए to calculate the value of number of moles of each component। number of moles निकाले आपने 120 divided by 60 weight upon molecular mass, that is the number of moles। so 120 divided by molecular mass of CH3COH 60 से डिवाइड किया 2 moles आए। इसका 92 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 46 से डिवाइड किया, इट केम आउट टू बी 2। इनिशियली इसके 2 मोल्स थे, इसके 2 मोल्स थे, इसके 0, इसके 0 और एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए अप टू इक्विलिब्रियम पॉइंट x मोल्स यहां से निकल चुके हैं तो x ही यहां से निकलेंगे, x इसके बनेंगे, x इसके बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 4। K इज इक्वल टू जो मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, that is x into x divided by 2 minus x into 2 minus x और वैल्यू k की गिवन है 4। यहां से I calculated the value of x that came out to be 4/3। अब इस 4/3 को यहां डाला बिकॉज मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको CH3COO C2H5 की, that means moles of CH3COO C2H5 at the equilibrium x है वो divided by total number of moles that is 4, x/4 will be the mole fraction of this ester। x की वैल्यू डाल दी 4/3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.333। सो 23rd का C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, A moles of N2O4 gas is heated in a closed container to equilibrate N2O4 in equilibrium with twice NO2 at a pressure of P atmosphere. If X moles of N2O4 dissociate at equilibrium, then X upon A की क्या वैल्यू आएगी? That's what he is asking for। तो इसमें भी आपने क्या करना है, Kp की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ऑप्शंस में Kp दिए हुए हैं। तो Kp वाली इक्वेशन लिखनी है आपने इस रिएक्शन के लिए, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए और उसमें से Kp वाली एक्सप्रेशन में से x अपॉन a निकालना है आपको। दिस इज 24th क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कौन सा है? इक्विलिब्रियम है N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO2 गैस। टोटल प्रेशर P एटमॉस्फेयर गिवन है और इसमें यह भी बोल रखा है कि स्टार्टिंग में वी हैव A मोल्स ऑफ दिस, इसके कितने होंगे 0। इक्विलिब्रियम तक x मोल्स N2O4 के डिसोसिएट हो जाते हैं, दिस इज आल्सो गिवन, दैट मींस ये रह जाएगा A माइनस x और ये बनेंगे 2x। NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए,
that will be equal to a minus x plus 2x, that is equal to a plus x. अब Kp का मैंने इजी फॉर्म आपको बताया है कैसे करना है. Kp निकालने के लिए इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट्स के गैसियस प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं 2x रेज टू पावर इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसके कितने मोल्स हैं a माइनस एक्स रेज टू पावर 1 ओनली बिकॉज 1 मोल है, इनटू टोटल प्रेशर divided by total number of moles at the equilibrium, that is total pressure divided by A plus X raised to power delta Ng. Delta Ng क्या है इस रिएक्शन के लिए 2 minus 1 that is 1 only. तो ये जो एक्सप्रेशन बनी है यहां से you have to calculate the value of X upon A. So this will be equal to Kp is equal to 4x square into P, a minus x into a plus x, a minus b into a plus b is a square minus b square. So it will be equal to a square minus x square. अब आप ओपन अप कीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको यहां से. So this will be equal to kp a square minus kp x square is equal to 4x square into p. x स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड लेके जाइए, सो इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर वाली टर्म्स उस साइड लेके जाइए, kp a स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस kp इंटू x स्क्वायर. नाउ यू वांट द वैल्यू ऑफ x अपॉन a, तो आप क्या कीजिए सबसे पहले x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए. तो इस एक्सप्रेशन से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर निकालिए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नीचे लेके जा रहा हूं मैं. दिस विल बी इक्वल टू kp अपॉन 4p प्लस kp, और दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस kp डिवाइडेड बाय 4p प्लस kp. That is, this is the value of x upon a, and this is kp upon 4p plus kp raised to power half, and that is the D option. So 24th का D is the correct option. इसमें देखिए जो इक्विलिब्रियम था, सबसे पहला काम मैंने वो किया, वो इक्विलिब्रियम लिखा. उसके बाद जितने मोल्स गिवन थे N2O4 के बिगनिंग में A मोल्स थे और ये रहे होंगे 0, और उसने कहा कि x मोल्स अप टू इक्विलिब्रियम N2O4 के डिसोसिएट हो जाते हैं, तो कितने रह जाएंगे a माइनस एक्स, और इसके कितने बनेंगे 2x. टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए एट द इक्विलिब्रियम, दैट इज a माइनस एक्स प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू a प्लस एक्स. उसका kp की एक्सप्रेशन लिखी, kp की वैल्यू लिखी, kp इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. सो 2x रेज्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इनटू टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम P गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, दे आर P प्लस एक्स रेज टू पावर डेल्टा Ng. डेल्टा Ng इसमें क्या है 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1. अब इसको ओपन अप किया, इसको सॉल्व किया, एंड आई सॉल्व्ड इट दिस इक्वेशन फॉर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, उसका अंडर रूट लिया, एंड दैट केम आउट टू बी kp अपॉन 4p प्लस kp रेज टू पावर हाफ, एंड 24th का D is the correct option. 25th question. In which of the following equilibria will Kc and Kp have the same value? तो Kp और Kc की सेम वैल्यू कहां पे होगी? जब डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0. Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. This is the formula. और Kp will be equal to Kc कब? When delta Ng is equal to 0. RT raised to power 0 will be equal to 1. So we need that it has to be anything raised to power 0 will be 1.
सो वी नीड दैट डेल्टा एन जी शुड बी इक्वल टू 0, और वो वाला ऑप्शन देखना है जिसमें डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, एंड इट विल बी डी ऑप्शन. N2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO गैस. इसमें डेल्टा एन जी देखिए 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट्स में, माइनस रिएक्टेंट्स में कितने हैं, वहां भी 2 मोल्स हैं, तो 2 minus 2 will be 0, और RT raised to power 0 will be equal to 1, and Kp will be equal to Kc in this question. So 25th का D is the correct option. Next is 26th question. The relation between Kp and Kc for the reaction twice NO gas plus Cl2 gas in equilibrium with twice NOCl gas is. Kp और Kc के बीच में रिलेशन चाहिए हमें, और जो रिएक्शन है दैट इज ट्वाइस NO गैस प्लस Cl2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NOCl गैस. ऑल आर गैसियस कंपोनेंट्स, और Kp आपको पता है इज इक्वल टू Kc RT raised to power delta Ng. What is the value of delta Ng in this? 2 minus 1 plus 2, that is 3. 2 minus 3, that is equal to minus 1. So this will be equal to Kp Kp is equal to Kc upon RT. Kp is equal to Kc upon RT will be the correct option, और ये है C option. Kp is equal to Kc upon RT. So 26th का C is the correct option. Next is 27th question. At temperature T Kelvin, PCl5 is 50% dissociated at an equilibrium pressure of 4 atmosphere. At what pressure it would dissociate to the extent of 80% at the same temperature? Temperature same है, लेकिन pressure पूछा हुआ उसने कि 80% डिसोसिएशन किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे होगी इस PCl5 की. दैट्स द क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, Kp निकाल लेना है. फर्स्ट पार्ट से आपने Kp निकाल लेना है. सो 27th क्वेश्चन. Equilibrium is PCl5 gas in equilibrium with the PCl3 plus Cl2, or at temperature T Kelvin PCl5 is 50% dissociated at an equilibrium pressure of 4 atmosphere. Let it be कि ये starting में 1 mole थे, इसके 0, इसके 0, this is at T equal to 0, और equilibrium point पे if this is 50% dissociated, 50% डिसोसिएशन कितनी हो जाएगी, इसमें से 1 में से 50% निकाल दीजिए, 0.5 निकल गया, तो कितना रह जाएगा, 1 minus 0.5 that is equal to 0.5. इसमें से 0.5 निकला तो ये कितना बनेगा, this will be 0.5, और ये कितना बनेगा, this will also be 0.5. Nt निकाल लीजिए, total number of moles at the equilibrium, 0.5 plus 0.5 plus 0.5 that is equal to 1.5. Now come to the value of Kp. Kp will be equal to moles of the products divided by moles of the reactants raised to power their stoichiometric coefficient. So it will be 0.5 into 0.5 divided by 0.5 total pressure. कितना दिया हुआ total pressure? 4 atmosphere divided by total number of moles. कितने आ रहे हैं? 1.5 raised to power delta Ng. कितना delta Ng है यहाँ पे? 1 plus 1 2. 2 minus 1 that is 1, so it will be raised to power 1 only, and we have to calculate this. 0.5 this cancels out, so this will be equal to, if we calculate this will be equal to 4 by 3. so Kp की वैल्यू निकल गई. अब सेकेंड केस में भी Kp यही डालना है. क्यों ये डालना है? बिकॉज टेम्परेचर तो चेंज नहीं करवाया उसने, और जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज. सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में Kp की सेम वैल्यू डलेगी. Kp will be equal to 4 by 3 only.
तो पर उसने यहां पे सेकंड केस में कहा है कि कौन सा वो प्रेशर होगा जिस प्रेशर पे PCl5 80% डिसोसिएट हो जाएगा। दैट्स द क्वेश्चन कि 80% डिसोसिएशन किस प्रेशर पे होगी। तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स निकालिए, अगर 80% डिसोसिएशन हो जाती है तो 1 में से कितना बचेगा 0.2, 0.8 निकल जाएगा, 80% निकल जाएगा। ये कितना बनेगा 0.8 और ये कितना बनेगा 0.8। अब Kp की वैल्यू डालिए सेम इसी तरह से जैसे पीछे डाली थी हमने, इस पार्ट में डाली थी। तो Kp क्या होगा, Kp विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स के मोल्स 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के मोल्स 0.2, टोटल प्रेशर जो कि कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 0.2 प्लस 0.8 1 प्लस 0.8, सो एनटी कितना आ रहा है इसमें सेकंड केस में 1.8। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.8 डेल्टा एनजी तो वही होगा। और केपी की वैल्यू डाल दीजिए यहां पे, क्या आया केपी हमारे पास 4/3, वो यहां पे डाल दीजिए। तो दिस विल बिकम, क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, केपी की वैल्यू डाल दीजिए 4/3 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 1.8। और ये जो इक्वेशन बनी है, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस P, और जो P आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.75 आएगा P, दिस विल बी 0.75 एटमॉस्फेयर्स। सो ऐसे क्वेश्चंस में जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा तो Kp की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से आप Kp निकालिए सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि एट टेम्परेचर T केल्विन PCl5 is 50% dissociated at an equilibrium pressure of 4 atmosphere. So this is the equilibrium PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2, all are gases. इसको 1 मोल लें अगर स्टार्टिंग में, this will be 0 and this will also be 0. So इसमें से 50% डिसोसिएशन कराइए। 50% डिसोसिएशन का मतलब है कि 0.5 निकल गया, 0.5 रह गया, और 0.5 यहां से निकला तो 0.5 इसके मोल्स बनेंगे, 0.5 इसके मोल्स बनेंगे, and Nt will be equal to total number of moles. This Nt is total number of moles at the equilibrium. सारा एड अप किया, this is 1.5. फिर Kp की वैल्यू क्या होती है, Kp की वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स के मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के मोल्स इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेज टू पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng फॉर दिस इज इक्वल टू 1। और ये सॉल्व किया मैंने एंड इट केम आउट टू बी 4/3। अब सेकेंड पार्ट में भी Kp की वैल्यू विल बी इक्वल टू 4/3 ओनली, that will not change because temperature is not getting changed, so it will be। लेकिन सेकंड पार्ट का Kp निकालने से पहले, Kp की जो एक्सप्रेशन लिखने से पहले you have to write the number of moles of each component। अब सेकंड पार्ट में इसने कहा 80% डिसोसिएशन होनी चाहिए PCl5 की, और किस प्रेशर पे 80% डिसोसिएट होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट। 80% इसमें से निकल जाए तो दैट मींस 1 में से 80% 0.8 निकल गया, कितना रह गया 0.2। अगर 0.8 निकला यहां से तो दिस विल बी 0.8, दिस विल बी 0.8, Nt टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1.8। अब Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स के मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के मोल्स, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेज टू पावर डेल्टा Ng, और Kp की वैल्यू डाल दी 4/3, और इस ये बन गई एक्सप्रेशन 4/3 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू टोटल प्रेशर P अपॉन 1.8 रेज टू पावर डेल्टा Ng, एंड P यहां से निकाला एंड इट केम आउट टू बी 0.75। सो 27th का C इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.75 atmospheres. Next is 28th question, and 28th question is delta G naught F for HI is 1.7 kilojoules per mole. The equilibrium constant Kc for the reaction twice HI gas in equilibrium with H2 gas plus I2 gas at 298 Kelvin is. अब this is very tricky question, 28th question. delta G naught F for HI given है, और delta H naught F जो है, delta G naught F जो है that is the free energy formation for HI। that HI की जो formation है
उसके लिए जो डेल्टा जी नॉट है दैट इज गिवन HI की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसका पूछ रहा है? HI के डिसोसिएशन का। वो भी HI के कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं? 2 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं इस केस में। सो अगर HI की 28th क्वेश्चन HI की फॉर्मेशन के लिए, दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 1.7, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा? HI गिविंग यू हाफ H2 प्लस हाफ I2 के लिए दिस विल बी -1.7, इट विल बी -1.7, उल्टा कर दिया जाएगा रिएक्शन। लेकिन यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछा है वो ट्वाइस ऑफ दिस है, तो इसके लिए क्या होगा? ट्वाइस HI H2 प्लस I2, इसके लिए डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज -2 इंटू 1.7। दिस इज डेल्टा जी नॉट फॉर दिस एक्सप्रेशन जिसके लिए उसने Kc पूछा हुआ है। और इंफॉर्मेशन जो गिवन थी दैट वाज डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर HI, दैट मींस इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट गिवन था 1.7। आपने रिवर्स किया और उसके लिए आ गया -1.7, इसका डबल किया उसके लिए आ गया डबल द वैल्यू ऑफ -1.7। और अब आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K या log ऑफ Kc। यहां वैल्यू डाल दें, डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है? -2 इंटू 1.7 इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना गिवन है केल्विन में? 298 केल्विन, लॉग ऑफ Kc। और इस एक्सप्रेशन से यू हैव टू कैलकुलेट दिस लॉग ऑफ Kc। लॉग ऑफ Kc निकालोगे और लॉग ऑफ Kc जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.5958, और लॉग ऑफ Kc जब निकल गया उसका आपको एंटीलॉग लेना पड़ेगा, और इसका एंटीलॉग अगर लोगे 0.5958 का तो आंसर विल बी 3.9 विल बी Kc, सो इट विल बी 3.9। सो 28 का C 3.9 is the correct option